Hello children, welcome to digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gadawara. I am Amit Toshniwal, your accounts teacher. This video is for class 11th. Subject is accountancy. Chapter number 11, depreciation, part 1. Depreciation, it means क्षय हो जाना, कमी होना. When the value, cost or price of any commodity, anything gets reduced due to different reasons, and that loss, that reduction in value is permanent, so that is called depreciation. So everything what is new today, that will become old tomorrow, is it? So when that will become old, it means its utility decreases, moreover its money value will get decreased. So what happens in manufacturing units or in a business enterprise, there are certain fixed assets which are in common use. They are used in means daily routine work, and due to which the machinery, plant or whatever assets is being used, it means day by day it gets older and its efficiency decreases, and there is a chance of to be broken or to be destroyed, for which they will lose their values, and that the loss of value will be permanent, cannot be recovered. So such phenomena is called depreciation. Okay, so you are given a definition. Definition represents that part of the cost of fixed assets which is not recoverable when the assets is finally put out of use. उसकी कीमत हम वापस नहीं ला सकते. So on the basis of definition, we can point out its features, or can say characteristics. First, depreciation means reduction in value. Second, depreciation is always charged on the book value. Book value means the cost which is for which it was purchased. Okay. Then it is a permanent decrease, cannot be recovered. That is continuous decrease. So it happens continuously. Every day it is happening, whether the assets is in use or not in use. If it is kept aside, even then it loses its value. Depreciation is charged only on fixed assets. It is never charged on current assets. The nature of depreciation is an expense, but this is not a monetary expense. This is a non-monetary expense, which is for which no money has to be spent. The money, or you can say the value, is getting reduced automatically. Okay, that is allocation process. This is not the process of valuation. It is the process of allocation of the cost of assets over the period of its life. It means for which provision, or you can say fund, is created, and a certain amount or out of the gross profit is deposited to that, so that the allocation of new assets can be done in upcoming future when the asset loses its life. Next is based on forecast. So it is assumed that what can be the life of an asset or plant or machinery, and after a certain period of time, certain years, that machinery, that plant or assets will not be in use, that will become unuseful, and purchase of new machinery, plant or assets will be required. So
seeing all these points, keeping all these forecasting in mind, depreciation is charged. It's a gradual fall. It does not happen in a day or two. It takes months and over years. Then fall in quality and productivity due to depreciation in anything. Assets loses its efficiency or capability. Productivity is lost. Okay. Now we'll come to the topic reasons governing the existence of depreciation. यानी depreciation के होने के कौन कौन से रीज़न है, मतलब depreciate क्यों होती हैं चीज़ें. तो सबसे पहली चीज़ है wear and tear. कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा एक सी नहीं रहेगी, उसमें टूट फूट होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड wear and tear. जब टूट फूट हो जाएगी जो फिक्स्ड असेट्स हैं तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, सिंपल. नेक्स्ट, अफ्लेक्शन और एक्सपायरेशन ऑफ टाइम. एक समय के बाद वो ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देगी. लाइक बैटरीज, कोई बैटरी है, जनरेटर है, सो देयर आर सच असेट्स, दीज आर टेंजिबल वंस एंड सम असेट्स आर इनटेंजिबल लाइक कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड लाइसेंस. सो सच थिंग्स उनकी जो वैल्यू होती है एक समय के बाद ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाती है. लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, पेटेंट वैल्यू एक्सपायर हो जाती है, कॉपीराइट वैल्यू एक्सपायर हो जाती है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. तो एक समय के बाद जब ख़त्म हो जाएगी तो उसकी वैल्यू ज़ीरो. देन ऑब्सोलेसेंस, इसका मतलब हुआ कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, इसका हिंदी मीनिंग होता है अप्रचलन हो जाना, यानी चलन से बाहर होना. So what happens when a new technology comes, then old technology or the traditional one is not in use. Even if it is in use, then it cannot give much productivity and the cost of production will raise. So what will happen? Just to sustain in market, new technology has to be adopted. तो जब पुरानी चीज़ ऑटोमेटिक चली गई, जैसे अपन बात करें टाइपराइटर और कंप्यूटर, तो आप कहाँ काम करवाना पसंद करोगे? कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर सेंटर पे, क्योंकि वहाँ पर टाइपिंग फास्ट होती है, प्रिंटिंग फास्ट होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी है. तो टाइपराइटर जो है वो धीरे धीरे कहाँ चले गए, अप्रचलित हो गए, यानी कि ऑब्सोलेसेंस हो गए वो. उसके बाद फिर वो बचे नहीं अब. उसके बाद है एग्जॉस्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. तो इसको हम कह सकते हैं डिप्लेशन. कुछ मशीन्स या कुछ कहना चाहिए असेट्स ऐसी होती हैं वो एक समय के बाद अपनी वैल्यू खुद ख़त्म, उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, फिर वहाँ कुछ नहीं है. लाइक माइंस यानी खदान. तो खदान में जितना कोयला होगा मान लो, तो कोयला निकल जाने के बाद उस खदान यानी माइंस की कोई वैल्यू नहीं बची. ऑयल वेल्स या फॉरेस्ट, लकड़ी पूरी कट गई तो अब जंगल बचा नहीं, तो उसको हम बोलते हैं एग्जॉशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. वहाँ पर अब वो चीज़ है ही नहीं, तो खदान खोद के करोगे भी क्या, कोयला पूरा निकल चुका है. देन एक्सीडेंट. तो जब एक्सीडेंट होता है किसी मशीन का, प्लांट का या किसी फिक्स्ड असेट्स का, दुर्घटना में जल गई, टूट गई, टकरा गई, तो वो अपना जो ओरिजिनल शेप होता है या जो उसकी एफिशिएंसी होती है, वर्किंग स्ट्रेंथ होती है, वो कम हो जाती है. तो इसके कारण भी डेप्रिसिएशन लगता है. या और रीज़न हो सकता है परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस. तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मोबाइल्स. तुमने आज मोबाइल ख़रीदा ओप्पो का जो 10,000 का है, पता चला 2 महीने बाद उसकी कीमत 9,000 बची. मार्केट में जो नया मोबाइल है वो 9,000 है, और वो 2 महीने बाद तुम उसको 9,000 में अपने मोबाइल को बेचोगे तो नहीं बिकेगा अब, क्योंकि वो परमानेंट फॉल हो गया. पहले 10,000 का था, लेकिन अब मार्केट में उसकी न्यू की कीमत कितनी है, 9,000. तुम सोच रहे हो कि नहीं मेरा 2 महीने ही चला है, मैं 9,000 में बेच लूँगा, तो क्या बिक जाएगा? नहीं बिकेगा. तो 9 से कम में जाएगा, यानी 7 के आसपास, जबकि चला 2 महीने ही है वो. तो दिस इज़ कॉल्ड परमानेंट फॉल इन मार्केट. उसकी मार्केट में ही कीमत कम हो गई. जब तुमने ख़रीदा था तब वो महंगा बिक रहा था, अब वो सस्ता हो गया. तो जब सस्ते में नया है तो तुम्हारी कीमत उससे और कम हो गई, भले ही उसका समय कम हुआ हो. तो ये भी एक रीज़न होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए. इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन.
यानी कि बिजनेसमैन स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दे हैव टू मेक अ प्रोविज़न और रिज़र्व फॉर डेप्रिशिएशन। तो व्हाट आर दोज रीजंस? सबसे पहली चीज़ हो जाती है टू असर्टेन द ट्रू कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की सही कॉस्ट पता करने के लिए डेप्रिशिएशन की कॉस्ट उसमें ऐड करना ज़रूरी है। डेप्रिशिएशन यानी मशीन का घिसना, है ना। मशीन के जो पुर्जे होते हैं तो वो घिसते हैं, उनमें फ्रिक्शन होता है। तो अब हम ये मानते हैं कि इस चीज़ को बनाने में लगभग मशीन, यदि उसका पुर्जा 100 रुपये का था तो 20 रुपये का पुर्जा घिस गया होगा। तो वो डेप्रिशिएशन कॉस्ट उसमें ऐड करेंगे, तब हमें सही कॉस्ट पता चलेगी। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिशिएशन का नेचर एक्सपेंसिव नेचर है, मतलब वो एक्सपेंस नेचर का होता है वो। तो हमें एग्जैक्ट यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तब पता चलेगा जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिशिएशन का अमाउंट भी माइनस करेंगे तब। देन टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू टू द फाइनेंशियल पोजीशन, डेप्रिशिएशन ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द प्लांट मशीनरी और द असेट्स। जो भी असेट्स उसमें से उसकी कीमत कम कर देंगे तो बुक वैल्यू उसकी रिड्यूस हो जाएगी, और वही बुक वैल्यू जो होगी वो हम बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखेंगे। सो दैट विल प्रेजेंट द करेक्ट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट है टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। ये सबसे बड़ा कारण है इसका कि आने वाले समय में जब हमें नई मशीन खरीदना होगी तो अचानक से बहुत सारे पैसे लगेंगे। सो व्हाट विल हैपन, वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस दैट विल रिड्यूस। सो इट शुड नॉट happen abruptly, suddenly, for which every year some amount is kept as in provision out of the gross profit, so that after the certain period of time when the life is expired of the certain asset, so it can be purchased, and it should not the working capital should not be suffered. टू मेंटेन कैपिटल, ये पॉइंट इसी के अंदर आ जाएगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो रहता है तो यदि उसको हम निकाल लेंगे तो वो कैपिटल हमारी कम हो जाती है, इसलिए भी उसको रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन, यानी कि डेप्रिशिएशन किस रेट से लगाया जाए और कितना लगाया जाए उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है कॉस्ट ऑफ असेट्स। तो कॉस्ट ऑफ असेट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसकी परचेज प्राइस, उसका फ्राइट, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड other improvements of capital nature which are made. So depreciation is levied on this cost after adding all these. सबको जोड़कर जो कुछ पैसा आएगा उसको हम एक्चुअल कास्ट मानेंगे, यानी all the overhead expenses are added to this. Then estimated life of the assets. समझो कि किसी मशीन को आपने 10,000 में ख़रीदा और आपने माना कि ये 10 साल तक चलेगी, यानी 1 साल का 1,000 रुपये हमको बचाना पड़ेगा ताकि 10 साल में हम 10,000 रुपये इकट्ठे कर लें और 11वें साल में वो मशीन हम फिर से ख़रीद लें। तो वो कहलाती है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ। उसके हिसाब से डेप्रिशिएशन चार्ज किया जाएगा। यदि 15,000 की है मान लो वो मशीन और 10 साल में ख़त्म हो जाएगी तो 1,500 रुपये हर साल बचाना पड़ेंगे हमको, तब 10 साल में 15,000 रुपये होंगे और फिर हम नई मशीन ख़रीद पाएंगे। देन रेसिडुअल वैल्यू, जो भी चीज़ ख़राब हो जाएगी तो वो बिकेगी कबाड़ में, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं। भंगार में बिक जाएगी कुछ तुल के तो कुछ पैसा हमको उससे भी मिलेगा। सो दैट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट एंड देन डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ टू गेट द अमाउंट ऑफ एप्रिशिएशन पर एनम। वो निकालने के लिए हम उसको उसमें से माइनस कर सकते हैं। यूज़ ऑफ असेट्स मैटर करता है कि जो असेट्स है वो रेगुलर यूज़ में है, फ्रिक्वेंट यूज़ में है, या कभी कभार ऑफ्टन यूज़ में है, या फिर बहुत कम यूज़ में है। यदि वो बहुत ज़्यादा यूज़ में है, फ्रिक्वेंट यूज़ में है, रेगुलर यूज़ में है तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ज़्यादा होगा। यदि वो बहुत नाउ एंड देन यूज़ होने वाली चीज़ है तो उस पर रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कम होगा। नेचर ऑफ द असेट्स, नेचर का मतलब होता है उसकी यूटिलिटी ओवर द ईयर्स, यानी कि
जिनकी यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है कई सालों में, तो उसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन धीरे धीरे कम हो जाता है। यानी कि जो बहुत लंबे समय तक चलने वाली हैं, जो एग्जॉस्ट नहीं होंगी कई सालों तक, 25-50 साल तक, तो उनका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है वो कम होगा। लेकिन जो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाने वाली रहेंगी उनका डेप्रिसिएशन अमाउंट ज़्यादा रखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जैसे मान लो हम कोई भी पैसा है वो हम यदि कहीं और लगा देते, वो कैपिटल हम बिज़नेस में नहीं करते, तो उससे हमें कुछ और अर्निंग इंटरेस्ट हो सकती थी। तो वो जो इंटरेस्ट है वो असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए ताकि हमको एक्चुअल कॉस्ट पता चले, और डेप्रिसिएशन फिर उसी कॉस्ट पे लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद फिर हम मेथड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इनको ठीक तरीके से आप लोग लर्न करना। थैंक यू।